करते हैं हेडलाइंस की ओर। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर सुभाष स्वदेश भावना संस्था की ओर से शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शुक्रवार को रानीगंज के गिरजापाड़ा की रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खालसा सिख संगत गोविंद नगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। नगर निगम के आशुतोष भवन में शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई। 23 नंबर वार्ड पार्षद देवव्रत साई के नेतृत्व में एमएएमसी तृणमूल पार्टी कार्यालय के समक्ष एक कार्यक्रम का आयोजन। पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से 250 पूर्व शिक्षक तथा वर्तमान शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। रानीगंज के रहने वाले 35 वर्षीय युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट रानीगंज थाने में दर्ज कराई गई। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर सुभाष स्वदेश भावना संस्था की ओर से शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शनिवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर सुभाष स्वदेश भावना संस्था की ओर से शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सुभाष स्वदेश भावना संस्था के संस्थापक गोपालाचार्य के नेतृत्व में रानीगंज के अन्नपूर्णा लेन स्थित गुरुकुल विद्यापीठ में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को बुलाकर उनका सम्मान किया गया। अन्नपूर्णा लेन स्थित गुरुकुल विद्यापीठ आश्रम की स्थापना श्री श्री सदानंद चक्रवर्ती, जो कि श्री श्री भूमानंद के नाम से परिचित है, उनके द्वारा ही की गई थी। इस कार्यक्रम में रानीगंज श्री श्री विवेकानंद सेवा केंद्र आश्रम के सुब्रतानंद जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर कई विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के कई सदस्यगण उपस्थित रहे। শেষ হচ্ছে তোমরা স্থির হয়ে বসবে, কারণ আমরা এমন এক ব্যক্তিত্বের আমাকে 10,000 মন্ডল মহামন্ডলের শব্দের সামনে প্রত্যেকে যারা আছেন আসুন আপনারা একে একে পুষ্পাঞ্জলি দিন। আমাদের প্রত্যেকে দিগ্গজ ব্যক্তি গুণীজন, এনাদের তো যোগ্যতা নেই, তবে এনাদের কাছ থেকে আর মৌলিক কথা ক্লাসিক চৌকাঠের বাইরে একটিও ইংরেজি শব্দ বলতেন না, আর ক্লাসে যখন ঢুকতেন একটিও বাংলা বলতেন না। কিন্তু তার ইংরেজি এত প্রাঞ্জল ছিল যে আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারতাম। আমার মনে আছে অ্যারিস্টটল পোয়েটিক্স আমাদের ছিল, 50-52 পাতার একটি বই, বইটি পড়ে এক পর্ণ বুঝতে পারিনি, কিছু বুঝতে পারি। শিক্ষক দিবস এই উপলক্ষে আমি রানীগঞ্জে ভবানন্দ ভবানুরাগী সহ সকল ছাত্র ছাত্রীদের কাছে আহ্বান করেছিলাম, তাই শিক্ষক দিবস আমাদের শুধু রানীগঞ্জ নয়, পশ্চিম বাংলা নয়, ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের অন্যতম জ্ঞানী পুরুষ আমাদের
শিক্ষাদাতা, সমস্ত কিছুর আমাদের অভিভাবক শ্রী শ্রী ব্রহ্মানন্দ দেবকে স্মরণ করে তার শ্রীচরণে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আজকে এই শিক্ষক দিবসে এই 5ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে আমাদের গণশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে প্রথমে প্রণাম। শিক্ষক দিবসের আসার এখানে আমি নিজেকে সৌভাগ্য মনে করছি যে আমাকে ঠাকুরমা স্বামীজির তরফ থেকে এখানে যে নিয়ে এসছেন। আর ভুবানন্দজি মহারাজের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, তা সত্ত্বেও গতকাল আমি আমাদের আশ্রমে যে বরুণবাবু তাকে আমি একটু জিজ্ঞেস করলাম, এবং উনি বললেন মহারাজ উনি মানে এই লোকাল ট্রেনে যেতেন এবং ইংরেজি ডিকশনারিটা ওনার পকেটে, এইটুকু আমি শুনলাম না যে ইংরেজি ডিকশনারিটা ওনার পকেটে থাকত। তো আমার সৌভাগ্য, আমার দর্শন হয়নি মাস্টারমশাইকে, তাও আমি ঠাকুরমার স্বামীজির কাছে প্রার্থনা। উৎপত্তির ইতিহাসটা আমার অনুজপ্রতিম বাপুদেব ভালোভাবেই বলে গেল। রাধাকৃষ্ণনকে যখন শুধু নেহরু নয়, তার ছাত্ররাও বলেছিল যে স্যার আপনার জন্মদিন পালন করব, উনি বলেছিলেন ঠিক আছে, আমার জন্মদিনটা যেন আমার জন্মদিন না হিসাবে শিক্ষকের জন্মদিন হিসেবে পালন করবে। একই সালে, যে সালের কথা বাপুদেব উল্লেখ করল, সেই সালেই এবছর ঘটেছিল। সমাজে শিক্ষকের স্থান কোথায়? শিক্ষক দিবসের কাজ হচ্ছে শিক্ষকের সম্মান জানানো। আমি এই সময় একটা ঘটনার কথা বলি। ছিলেন ঔরঙ্গজেব। তো ঔরঙ্গজেব শাহজাদাকে পড়াবার জন্য একজন মৌলবীকে নিযুক্ত করেছে। একদিন ঔরঙ্গজেব দেখলেন ঔরঙ্গজেব পেরিয়ে যাচ্ছে শাহজাদা। রাধাকৃষ্ণনের 133তম জন্মদিনে এখানে উপনীত হয়েছিল। উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, তারপরে উপরাষ্ট্রপতি, পরে রাষ্ট্রপতি। পণ্ডিত নেহরু 1961 সালে তাকে বললেন যে আপনার জন্মদিনটাকে আমরা পালন করতে চাই। উনি বললেন যে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নয়, আমার মৌল পরিচয় ওটা পৃথিবী, আমি শিক্ষক, কাজে আমার জন্মদিন যদি পালন করতে শিক্ষক দিবস। 1961 সাল থেকে আমরা শিক্ষক দিবস পালন করে আসছি। বিদ্যা দু ধরনের, অপরাবিদ্যা, পরাবিদ্যা। অপরাবিদ্যা চাকরি বিদ্যা, যারা শিক্ষকতা করছি জীবিকা পুণ্যবিদ্যা চরিতার্থ করেন। শ্রী শ্রী ব্রহ্মানন্দদেব দুটি বিদ্যারই মূর্তিমান বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, আবার ঠাকুরের নির্দেশে সমকালেই তিনি পরাবিদ্যায় ভূমিকাতে অবতীর্ণ। ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের 133তম জন্মদিনের জন্য আজকে শিক্ষক দিবস। তো আমরা এই যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি, এটা যাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি তারই প্রতিষ্ঠিত একটা স্কুলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তার একটা মহান কর্মকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আরও কত কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কারণ আমাদের চোখ মায়াবদ্ধ, আমরা একটু দেখি, বেশিরভাগই দেখি না। এই যারা আমার কথা কেড়ে নিয়ে একটু আগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার ছাত্র অতনু বা আরও আগে যারা বললেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমিও আসানসোল থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম এবং দেখতাম যে আজকে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের জন্মদিন, সেগুলোকে শিক্ষক দিবস সারা ভারতবর্ষে পালিত হচ্ছে। তো আমরা যেখানে এখন রয়েছি, এটি হচ্ছে গুরুকুল আশ্রম এবং গুরুকুল বিদ্যাপীঠ। এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শ্রী সদানন্দ চক্রবর্তী মহাশয়, যিনি
শ্রী শ্রী ভূমানন্দ দেব হিসেবে পরিচিত। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ইংরেজি বিভাগের তিনি অধ্যাপক ছিলেন এবং তিনি শুধু পশ্চিমবাংলা না গোটা ভারতবর্ষের একজন অন্যতম খ্যাতনামা শাস্ত্র জ্ঞান, ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃত সব কিছুতে তার বিশাল জ্ঞান। তা আমরা এই পুণ্যভূমিটা যেটা নিজের হাতে তার গড়া, সেখানে আমরা শিক্ষক দিবস পালন করলাম যে তার মতো আদর্শ শিক্ষকের আজ কিন্তু অভাব রয়েছে। তো আজকে যে ছাত্র সমাজ একজন প্রকৃত শিক্ষককে চাইছে যে তার যেমন নিষ্ঠা এবং তার সততার প্রতি তার শিক্ষা দান করবে এবং ছাত্ররা প্রেম ভালোবাসার মাধ্যমে সেই শিক্ষা গ্রহণ করবে। তাই এই আজকের এই শিক্ষক দিবস পালনের মধ্য দিয়ে আমরা দুটো বার্তা সমাজের কাছে রাখতে চাইছি। একদিকে সমাজ যখন একটা অশিক্ষা কুসংস্কারে ভরে গেছে, সেই জায়গা থেকে সমাজকে মুক্তি দেওয়া এবং এই ভূমানন্দের অর্থাৎ সন্দেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতো শিক্ষককে খুঁজে বার করা, যা ছাত্রের কাছে আজকের যুগে বহু প্রয়োজন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार को रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित माइनिंग कॉलेज के समीप रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित माइनिंग कॉलेज के समीप रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला का नाम प्रतिमा घोष था एवं वर्ष 2007 में उसकी शादी उदय घोष के साथ हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। शुक्रवार की दोपहर प्रतिमा का पति उदय घोष मोहल्ले में रहने वाले किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए गया हुआ था। उसी वक्त उसकी पत्नी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्चों ने उसके शव को देखकर शोर मचाना शुरू किया। तत्पश्चात स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला के माता पिता मेजिया के रांगामाटी में रहने वाले हैं। खबर पाकर उसके माता पिता सहित वार्ड पार्षद प्रतिमा मुखी मृतिका के घर पहुंचे। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। আমরা জানি না, আমাদের কিছু বলা হয় না। কি দেখলেন এসে আপনারা? কি দেখলেন? আমাদের কিছু দেখতে জানি, আমাদের 4:30 সময় ফোন করে বলছে আমাদের লাশ এখনো দেখিনি। আমরা টাকা ফাঁসি নিয়েছে না মেরে দিয়েছে, আমরা কিছু জানি না। অধিকার ছিল না বাবার, আমরা এখানে নিয়ে এসেছি, আমরা ওইটাই জানি। ফাঁসি যদি নিয়েছিল আমাদের ফাঁসিটা কেন দেখাইলে না? আমাদের দায়িত্ব সাইডে জানছিল, ফাঁসিটা তো দেখাতে পারতো। যা বলতে ফাঁসি নিয়েছে এসে খুলে নিয়েছিল সে ঠিক আছে না, ও ওর দেখালো না কেন? কোন লোকটা নাম আছে, সেই লোকটার নাম চাই। বিয়ে হয়েছে তোমার 2007-এ। আপনার মেয়ের কি নাম? প্রতিমা। প্রতিমা কি? প্রতিমা ঘোষ। আগে পাল ছিল। আচ্ছা, কোথায় বিয়েটা? গির্জাপাড়ায় হয়েছে। মানে ওনার স্বামীর নাম উদয় ঘোষ। দুটো বাচ্চা আছে, বাচ্চাগুলো কেন আর নাই, সত্যিটা প্রকাশ হয়ে যায় তার জন্য। আচ্ছা, আপনি মেয়ের মা? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? আমার নাম কল্যাণী পাল। আচ্ছা, আপনাদের বাড়ি? আপনার বাড়ি রাঙামাটি কেন না? আমরা শুনলাম, আমরা ঘরের বাড়িতে ছিলাম, আমাদেরকে ফোন যায় ঘরকে, তখন বিকেল 4:30টার সময় আমার ছেলে ফোন করে বলছে ওর মাকে, মাগো আর প্রতিমা দিদি নাই, তোমরা সবাই এসো এখানকে। বাস এইটুকুই আমরা জানি। তারপরে আমরা আসলাম, আমার ছেলে যে এসেছে এখানে ও দেখতে পাইনি, তখন নিয়ে চলে এসেছি এখানকে। আমরা এখনো পর্যন্ত দেখতে পাইনি। আমার হ্যাঁ থানাতে গেছে, আমার ছেলেরা গেছে সব। কি চাইছেন? হ্যাঁ, আমরা সংশোধন চাইছি। সংশোধন বলতে দুটো ছেলে আছে, নাতি হয়, ঠিক আছে, ওইগুলো যাতে শাস্তি কষ্ট না পায়, ওদের নামে কিছু ডিপোজিট করুক, ওটাই আমরা চাই। কারণ কাল দিনে ও যদি নিজে আরও বিয়ে করে তাই ছেলেগুলো পর হয়ে যাবে, বেকার হয়ে যাবে, হবে না? তো তার জন্যই যাতে ছেলেগুলোর নামে কিছু করে, ওটাই আমরা চাই। আমাদের মেয়ে তো চলেই গেছে। মেয়ের কি নাম? মেয়ে ছিল প্রতিমা ঘোষ। আগের টাইটেল প্রতিমা পাল, আমরা পাল টাইটেল বলি। আমার নাম সুবোধ পাল। मेयर बाबा? हाँ, मेयर बाबा। हम लोग जब गया बाहर दौड़ के, उसका लड़का जो था, ठीक है, वही बोला कि लटका हुआ है मेरा माँ। हमने दौड़ के जाके गेट पे तोड़ के उसको उतार दिया। अच्छा, कौटा कितना बजे मतलब उतारा? करीबन सुबह ना शाम को? कितना बजे? दोपहर में ना। क्या नाम हो तुम्हारा? हमारा चंदन। पूरा नाम बोलो। साव। ঘটনা বলতে যে যার মারা গেছে উদয় ঘরে ছিল না। উদয় গেছিল আরেকটা পাড়াতে, যে বাচ্চা
একটা মারা গেছে, একটা ছেলে মারা গেছে, তাকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে গেছিলো। তখন ওটা বাজে প্রায় 3টা, না রে 3টা বাজে। ওরা যখন শ্মশানে চলে যায়, তারপরে 3:30 4টা নাগাদ নাকি এই খবরটা পায়। যে খবরটা পায়, কে খবর দেয়? ও দুটো ঘরে বাচ্চা আছে, ঘরে কেউ নেই, দুটো বাচ্চা আর ওর মা। ও দুটো বাচ্চা জানলা থেকে দেখেছে মা ঝুলছে। তখন বাচ্চাগুলো চিল্লিয়ে পাড়ার লোককে ডাকে। তো পাড়ার লোককে আমাদের গুন্ডা বলে যে একটা ছেলে আছে, ও রশি কেটে নামায়। তখন মনে হয় ও ভেবেছে হয়তো শ্বাস ছিল, সেই জন্য ওটা নামাইছে, পরে ইয়েতে নিয়ে আসে, হসপিটাল নিয়ে আসে। আপনারা তো পাড়ায় থাকেন, কোনো ঝামেলা বা আগে কোনো ঝামেলা না, এদের সুন্দর, এদের মানে পরিবার খুব সুন্দর। এটা মাথার মধ্যে ওই কী যে এলো কোনো বোঝা যায় না। এদের স্বামী স্ত্রী ভালো সম্পর্ক, ছেলেগুলো একটু বদমাশি করে, বাচ্চা ছেলে বদমাশ স্বাভাবিক ব্যাপার, এটা করতেই পারে, কিন্তু স্বামী স্ত্রী এদের সম্পর্ক কোনোদিনও খারাপ নয়। কী নাম আপনার? সঞ্জয় সিং। আপনার বাড়ি? ওখানে গিজাপাড়াতে। টল নেওয়া ওর উচিত হয় না, একটু বাচ্চার দিকটা দেখা দরকার ছিল, কিন্তু রাগের মুডে করে ফেলেছে, সেটা কিছু করার আর যায় না, হয়ে গেছে। গির্জাপাড়া কোন জায়গায় বাড়ি ওনাদের? গির্জাপাড়া ওইটা কালী মন্দিরের সামনে, গির্জাপাড়া যিনি মারা গেছেন মাইনিং কলেজটার সামনে বাড়ি। যিনি মারা গেছেন ওনার নাম? ওর নাম প্রতিমা ঘোষ। ওর স্বামীর নাম? उदय घोष। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खालसा सिख संगत गोविंदनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से शनिवार को आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी को कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया। कमेटी के सदस्यों ने मोमेंटो तथा शॉल देकर मेयर का सम्मान किया। खालसा सिख संगत गोविंदनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से शनिवार को आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी को कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया। कमेटी के सदस्यों ने नगर निगम कार्यालय में मेयर को मोमेंटो और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रधान दलबीर सिंह ने कहा कि मेयर साहब ने जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों की सेवा, लाखों जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री, दवाएं, आर्थिक सहायता, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि वितरण किए, वो सचमुच काबिले तारीफ है। इसे देखते हुए खालसा सिख संगत गोविंद नगर कमेटी ने आज इन्हें सम्मानित किया है। साथ ही उन लोगों द्वारा 11,000 रुपए की एक छोटी सी राशि चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने मेयर साहब से यह आवेदन किया कि गोविंद नगर के जिस सड़क का शिलान्यास मेयर साहब द्वारा किया गया है, उसका निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही साथ इलाके में पानी की समस्या को भी दूर किया जाए। इस विषय पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने गोविंद नगर इलाके की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। मौके पर कमेटी के उप प्रधान रघुवीर सिंह, सचिव राम सिंह, सह सचिव सोहन सिंह, कोषाध्यक्ष हरदयाल सिंह, सतनाम सिंह, वसंत सिंह, LN ठाकुर, रंजीत सिंह, जगतार सिंह, मोहन सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। आज हम लोग मेयर साहब को थोड़ा सम्मानित करने आए थे, और हमारे एक तो रास्ते की कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने संज्ञान में दे दिया कि आप थोड़ा सा रास्ता देख लेंगे, थोड़ा सा पानी का समस्या थी, इसके बाद हमें उनको संज्ञान में दे दिया। आप अपना परिचय दीजिए। मैं दलबीर सिंह गोविंद नगर से हूँ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान हूँ। कालीपहाड़ी गोविंद नगर जो गुरुद्वारा कमेटी है उसके पदाधिकारीगण हैं वो आ जाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 11,000 रुपये का अनुदान दिया है, और कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में हम लोगों को बताया है। कुछ काम हम लोग वहाँ पर कर पाए हैं, कुछ और काम अभी करना है, वो भी हम लोगों ने कहा है कि आने वाले दिनों में वो काम जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल नगर निगम की ओर से शनिवार को नगर निगम के आशुतोष भवन में शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई। आसनसोल नगर निगम की ओर से शनिवार को नगर निगम के आशुतोष भवन में शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई। इस दौरान मेयर जितेंद्र तिवारी ने डॉक्टर राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया तथा उपस्थित अन्य सदस्यों ने भी उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, अभियंता सुकोमल मंडल, वीरेंद्रनाथ अधिकारी, नगर निगम के MMIC पार्षद सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।
উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি যিনি ছিলেন এবং 27 যিনি মনোনীত হয়েছিলেন তারই আজ জন্মদিন। সেই জন্মদিনটিকে আমরা ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মাননীয় শ্রী অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, যার আজকে 132তম জন্মদিবস, আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে তাকে শিক্ষক হিসেবেই, রাষ্ট্রপতি তো ছিলেনই, কিন্তু তিনি যেটা ভালোবাসতেন শিক্ষক হিসেবে তাকে সম্বোধন করা, আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আজকে তার 132তম জন্মদিনে তাকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে তার জন্মদিনকে তাকে শ্রদ্ধা জানানো। আমি নিজেও একজন শিক্ষিকা হয়ে মনে করি সবসময় আমাদের শিখতে হয়, আমরা শিখছি। তো তাঁর জীবনে দিয়ে আমরা শিখেছি যে রাষ্ট্রপতির থেকেও তাকে শিক্ষক হিসেবে সম্মান জানাতে তিনি যে গর্ববোধ করতেন, এটি কিন্তু আমাদের দেশের একটা গর্ব। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনেও আজকে তার জন্মদিবস পালন করা হয়। আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি শ্রাবণী মণ্ডল, কাউন্সিলর। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে আসানসোল পৌর নিগম ডিস্টেন্স মেনটেন করে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে তার আন্তরিক শ্রদ্ধাটাকে জ্ঞাপন করলেন। এই সমস্ত মানুষজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার মধ্যেখান দিয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তার কর্মজীবন শিক্ষকতার মধ্যেখান দিয়ে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়েছিলেন এবং উনি জানতেন সেই সময় শিক্ষকদের মাইনে খুব কম ছিল এবং শিক্ষকরা খুব কষ্ট করে দিন যাপন করতেন। পরবর্তীকালে তিনি দেখলেন যে একজন রাষ্ট্রপতির জীবন আড়ম্বরিকতার মধ্যেখান দিয়ে যদি উদযাপন করা হয় অনেক বিপুল অর্থ খরচা হয়। উনি সেই খরচা বন্ধ করার মধ্যেখান দিয়ে ওনার জন্মদিনটাকে শিক্ষক দিবস হিসেবে উদযাপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং উৎসর্গ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। শিক্ষকরা আজ মান সম্মানভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ওনার জন্য। আমরা ওনার কাছে আরেকবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং উনি যে ভারতবর্ষের সেই সময় স্বাধীনতার পূর্বে যে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগিতা আন্দোলনে গান্ধীজির সহযোগিতার মধ্যেখানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত রেখে এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের স্বাধীন ভারতের প্রশাসনকে সুস্থভাবে পরিচালনা করে যে একটা গঠনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ভারতবর্ষ আজকে সেখানে চলছে। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভি নিউজ। आज शिक्षक दिवस है। आज के दिन ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है तथा उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में शनिवार की सुबह को 23 नंबर वार्ड पार्षद देवव्रत साई के नेतृत्व में एमएएमसी तृणमूल पार्टी कार्यालय के समक्ष एक कार्यक्रम आयोजित की गई। आज शिक्षक दिवस है। आज के दिन ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। उनके जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। भारतवर्ष में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम बार उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय बार राष्ट्रपति बने थे। उनके जन्मदिन पर स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में शनिवार की सुबह 23 नंबर वार्ड पार्षद देवव्रत साई के नेतृत्व में एमएएमसी तृणमूल पार्टी कार्यालय ऑफिस के समक्ष एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इलाके के पूर्व शिक्षक तथा वर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक में अच्छे अंक लाए मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। 23 নম্বর শিক্ষক দিবসে কি অনুষ্ঠান করলেন? আজকে শিক্ষক দিবস আমাদের শিক্ষাগুরু যাদের কাছ থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি, যাদের আদর্শে আমরা দীক্ষিত হয়ে আজকের এই জায়গায় পৌঁছেছি, সেই সমস্ত শিক্ষকরা যারা অবসর নিয়েছেন বহুদিন আগে, আজকে তাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে একটুখানি সম্মান জানাতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত ভাবছি, নিজেকে অত্যন্ত সম্মানীয় ভাবছি এবং তাদের আশীর্বাদটা এবং তাদের এই যে তারা আজকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে উপদেশগুলো আবার একবার আমাদেরকে মনে পড়িয়ে দিলেন,
এই উপদেশগুলো আগামী দিনে চলার পথে আমাদের আরও বেশি সহযোগিতা করবে। আপনার ওয়ার্ড থেকে দেখলাম একটা ছাত্রীকে আপনি সাহায্য করলেন। হ্যাঁ, একজন ছাত্রী, সে খুবই মানে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া তার পরিবার, এবং সে অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করেছে মাধ্যমিকে। তো তার পড়াশোনার চালানোটাই খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। সেখানে আমি আমার ওয়ার্ড থেকে ব্যক্তিগতভাবে তাকে কিছু অর্থ সাহায্য করে আগামী দিনে যাতে পড়াশোনার ক্ষেত্রে তার কোনো অসুবিধা না হয়। আপনাদেরই একজন সাংবাদিক আমাদের আছেন, আমাদের ওয়ার্ডেই থাকেন, সেই আমাকে খবরটা দিয়েছিল। তাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই যে এরকম আপনারা তো ছাত্রছাত্রীদের খবর রাখেন, তো এরকম যে কোনো দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে পারলে আমরা নিজেদেরকে ধন্য করব। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के रूप में शनिवार को पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से काजोड़ा बाजार प्रगतिशील सांस्कृतिक परिषद में मनाया गया, जिसमें 250 पूर्व शिक्षक तथा वर्तमान शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जयंती पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के रूप में शनिवार को पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से काजोड़ा बाजार प्रगतिशील सांस्कृतिक परिषद में मनाया गया, जिसमें 250 पूर्व शिक्षक तथा वर्तमान शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के फोटो पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव, टीटीबी कॉलेज के प्रिंसिपल आशीष देव, पूर्व प्रधानाध्यापक मधुसूदनपुर चक्रवर्ती, वक्तानगर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक जगदीश चटर्जी, खास काजोड़ा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक सुदीप चक्रवर्ती, पूर्व प्रधानाध्यापक अखिल चंद दे, सीआई देव ज्योति साहा, जिला परिषद कर्माध्यक्ष कालोबरन मंडल, पंचायत समिति अंडाल के सभापति लक्की टुडू, काजोड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान पानकिस्टो नोनिया तथा अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काजोड़ा अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मलय चक्रवर्ती, शंकर कुमार, श्रवण कुमार पासवान, बासव हेम्ब्रम, नयन मंडल, पार्थ शर्मा, राजेश चक्रवर्ती, चंद्रनाथ सहाना, रामनिवास भट्टाचार्य एवं राम प्रकाश भट्टाचार्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शिक्षक दिवस हमारे आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और वो पेशे से एक शिक्षक थे, उन्होंने ये प्रेरणा दी कि शिक्षक ही है जो समाज का असल कारीगर है और समाज को गढ़ने वाला है। वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जिस पेशे में हो, जिस क्षेत्र में हो, जो लोग भी हो, जो अपना श्रम और सेवा कर रहे हैं, उस सेवा करने लायक बनाने वाला पहला व्यक्ति होता है शिक्षक। और शिक्षक के बिना किसी भी समाज का गठन नहीं हो सकता है, किसी भी समाज को बनाया नहीं जा सकता है, तो चाहे जो भी समाज हो। और शिक्षक का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं तो शिक्षक के पास अगर सृजन करने की क्षमता है तो शिक्षक के पास प्रलय लाने की भी क्षमता है। हमने इतिहास में देखा है कि आचार्य चाणक्य ने किस तरह से पाटलिपुत्र में सृजन किए थे और से प्रलय लाए, दोनों काम किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित करके पाटलिपुत्र का राजा बनाए थे, हमने देखा है। इसी तरह शिक्षकों का हर समय हर व्यक्ति को चाहिए अपने गुरुजन, और चाहे केवल स्कूल में पढ़ाने वाले ही नहीं, शिक्षक विभिन्न तरह के होते हैं। हम लोगों का सबसे पहला शिक्षक हमारी माँ होती है, जो हमें अंगुली पकड़कर चलना सिखाता है, हमें सिखाती है, हमें खाना कैसे खाया जाए वो सिखाती है। तो सबसे बड़ा शिक्षक हमारी माँ होती है, हमारे पिताजी होते हैं। तो इसलिए हर लोगों का सम्मान करना चाहिए, हर शिक्षक समाज को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही समाज को गढ़ सकता है। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज धोबीपाड़ा के रहने वाले 35 वर्षीय युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट रानीगंज थाने में दर्ज कराई गई है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जरियाज अहमद 19 अगस्त से ही लापता है। रानीगंज के धोबीपाड़ा के रहने वाले 35 वर्षीय युवक के गुमशुदगी की रिपोर्ट रानीगंज थाने में दर्ज कराई गई। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जरियाज अहमद 19 अगस्त से ही लापता है, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, परंतु उनका कहीं भी पता नहीं चल पाया। विवश होकर परिजनों ने रानीगंज थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। साथ ही साथ परिजनों में थाने में युवक के साथ किसी की दुश्मनी न होने की भी बात कही। वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा उन्हें आश्वासन देते हुए कहा गया कि वे अपनी तरफ से अपने रिश्तेदारों के घर युवक को ढूंढे एवं पुलिस द्वारा भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हुआ नहीं हुआ। आपका कौन? मेरा पति है। 19 तारीख पुलिस प्रशासन तो खोज रहा है। किसी से कोई झगड़ा विवाद बाहर में या घर में किसी से कुछ हुआ है क्या? आपसे कभी कोई झगड़ा? क्या नाम हो आपका? मोबिना खातून। वाइफ है उनकी? अच्छा, ये बच्चा? मेरा बेटी है। एक बेटी है। कहाँ रहते हैं? हम अपनी मम्मी कहाँ? धोबीमाला में रहते हैं। तो हम लोग को बताइए। 19 तारीख का सुबह से। 19 तारीख का मिसिंग हुआ। हाँ, थाना में जाना है 23 तारीख को। 23 तारीख को। क्या प्रशासन क्या कह रहे हैं? प्रशासन बोल रहा है कि हम लोग खोज रहे हैं, आप लोग भी खोजिए अपने रिश्तेदार या कहीं पर ही। उसके बाद प्रशासन कागज़ दिया है, स्टाम्प मार के, बस। ये नहीं हुआ है, बस बाहर में किसी से कुछ हुआ था? नहीं, किसी से। आप लोग ऐसे जानकारी है क्या? नहीं। क्या नाम हुआ? जौहरी आलम। जौहरी आलम। आपका नाम? परवेज आलम। आपका कौन लगता है? मेरा छोटा भाई है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शिक्षक दिवस का दिन। यह दिन हर साल मनाया जाता है।
हालांकि इस वर्ष कोरोना के कारण स्कूल, निजी ट्यूशन एवं शैक्षणिक संस्थान बंद है, लेकिन कहीं न कहीं इसे सावधानी के साथ देखा जा रहा। उदाहरण के लिए शनिवार को शिक्षक दिवस पर पांडेश्वर नवग्राम क्षेत्र के एक असाधारण पहल देखी गई। 5 सितंबर है शिक्षक दिवस का दिन। यह दिन हर साल मनाया जाता है। हालांकि इस वर्ष कोरोना के कारण स्कूल, निजी ट्यूशन एवं शैक्षणिक संस्थान बंद है, लेकिन कहीं न कहीं इसे सावधानी के साथ देखा जा रहा। उदाहरण के लिए शनिवार को शिक्षक दिवस पर पांडेश्वर नवग्राम क्षेत्र में एक असाधारण पहल देखी गई। शिक्षक दिवस आमतौर पर छात्रों की पहल पर मनाया जाता है, लेकिन यहाँ खुद ही स्कूल के प्रधानाचार्य अरुण कुमार दे शिक्षक दिवस पर इलाके के छात्रों के घर पैदल पहुंचे। अपनी पहल पर उन्होंने छात्रों को नोटबुक और पेंसिल के साथ साथ अध्ययन सामग्री उपहार में दिया। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आठ सूत्री मांगों के समर्थन में शनिवार की संध्या सियारसोल मोड़ पर सारा भारत कृषक सभा रानीगंज एरिया कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में शनिवार की संध्या सियारसोल मोड़ पर सारा भारत कृषक सभा रानीगंज एरिया कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता, सुप्रियो राय, कृषक सभा के नेता रामचंद्र महतो, किशोर घटक, देवीदास बनर्जी, संजय प्रामाणिक सहित काफी संख्या में वामपंथी संगठन के समर्थक उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक रुनु दत्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के जन विरोधी एवं श्रमिक विरोधी नीति के कारण आम आदमी का जीवन बेहाल हो चुका है। वामपंथी संगठन लगातार लोगों के लिए हित के लिए खड़ी है। 8 सूत्री मांगों में प्रत्येक आयकर दाता परिवार को छोड़कर सभी परिवार को सरकार द्वारा प्रत्येक माह 7,500 नगद प्रदान करनी होगी। प्रत्येक माह 10 किलो करके बिना मूल्य का राशन प्रदान करना होगा। मनरेगा प्रकल्प के तहत 100 दिन कार्य की जगह 200 दिन कार्य प्रदान करने होंगे। साथ ही साथ उनकी मजदूरी 600 रुपए करके देनी होगी। शहर अंचल में युवकों के काम को सुनिश्चित करना होगा। बेकार युवकों को बेकार भत्ता देना होगा। कृषकों के फसल का सटीक दाम प्राप्त हो एवं कृषकों का बकाया ऋण माफ किया जाए। सरकारी संस्थानों को निजीकरण करना बंद करना होगा। उन्होंने श्रम कानून को समाप्त करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर यदि सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता है तो आने वाले दिनों में वामपंथी संगठन लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। सभा के पूर्व रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित माकपा कार्यालय से एक रैली निकाली गई, जो कि रानीगंज की परिक्रमा करते हुए जेके नगर क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। 100 দিনের কাজ সেটা 200 দিন করতে হবে এবং দৈনিক মজুরি 600 টাকা করতে হবে। এই সমস্ত দাবি নিয়ে আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে। শুধু এমনটা নয় আজকের দিনের আন্দোলন, আমরা ধারাবাহিকভাবে এই সময়কালে আন্দোলন 4.5 মাস 5 মাস ধরে শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আমরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছি। আপনারা জানেন, আমার পূর্বের বক্তা বলেছেন, কৃষক সভার পক্ষ থেকে নেতৃত্ব বলেছেন যে পরিযায়ী শ্রমিকদের কি দুরবস্থা ছিল। সেই পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন খেতে না পেয়ে বাড়ি ফিরে আসতে চাইছিল, তখন দিল্লি সরকার কিংবা আমাদের রাজ্যের সরকার তারা কত অমানবিক হতে পারে তার নিদর্শন, তার নমুনা তারা পেশ করেছে সাধারণ মানুষের সামনে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে। যে বিদেশ থেকে বিমানে করে যাদেরকে ফিরিয়ে এনে ভারতবর্ষে আপনারা করোনা রোগটাকে ছড়াচ্ছেন, এই বিদেশ থেকে বিমানে করে লোকদের ফিরিয়ে না এনে খেতে না পাওয়া, বিদেশে কাজ করতে যেতে বাধ্য হওয়া শ্রমিকদেরকে যদি আপনারা ফিরিয়ে আনেন, তাদের জন্য যদি বাসে ট্রেনের ব্যবস্থা করতে পারতেন, তাহলে এত লোক দুর্দশার মুখোমুখি হতো না। এত লোক না খেতে পেয়ে রাস্তায় মাইলের পর মাইল হাঁটতে গিয়ে তাদের নিজের জীবনটাকে বিপন্ন করে তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হতো না। বিশেষ ট্রেন
ব্যবস্থা করে সেই পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে বিনা ভাড়ায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু না, দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা আমাদের রাজ্যের সরকার তারা ফিরিয়ে আনবার কোনো ব্যবস্থা করেননি। আমরা সিআইটিউর পক্ষ থেকে বলেছিলাম যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ট্রেনের ভাড়া দরকার হলে সিআইটিউ দেবে, প্রত্যেকটা জায়গায় সিআইটিউ ব্যবস্থা করেছে। আপনারা জানেন এই কোভিড-19 করোনা উত্তর পরিস্থিতি একটা সাংঘাতিক অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা। গত 25শে মার্চ যখন স্থায়ী লকডাউনের কথা ঘোষণা হলো, তখন আমাদের দেশের কিছু মানুষ সংক্রমিত ছিলেন, কিছু মানুষ সেই সময় মারা গিয়েছিলেন। আর আজকে আমাদের দেশের সরকার প্রতিযোগিতা করছে ব্রাজিলের জায়গাটা নেওয়ার জন্য, কিছুদিন পরে হয়তো আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাবে। প্রথম স্থান অধিকার করার লড়াইয়ে पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने परसों आंदोलन और त्याग करके पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट की सरकार बनाई थी, मेहनत कश मजदूर और किसानों की सरकार बनाई थी। एक ऐसी सरकार बनाई थी जिस सरकार ने जनता को अधिकार दिया, पंचायत का व्यवस्था किया गया। उसके पहले पंचायत नहीं था, पश्चिम बंगाल में यूनियन बोर्ड चलता था। यूनियन बोर्ड में जनता को वोट देने का अधिकार नहीं था। वहां वोट कौन देते थे? वहां वोट देते थे जो लोग टैक्स पे होते थे, जो लोग पैसे वाले होते थे, जमींदार घर के होते हैं, भूस्वामी होते थे, वो लोग वोट देते थे। आम जनता को वोट देने का कोई अधिकार नहीं। ग्रामीण जनता को जिस प्रकार से अधिकार दिया, 1978 में ग्राम पंचायत की चुनाव करवाई पूरे राज्य में और जनता के हाथ में सरकार ने अधिकार दे दिया, ग्रामीण सरकार बनाया सरकार ने। उसी तरह से म्यूनिसिपैलिटी बनाए, म्यूनिसिपैलिटी भी वोट होता रहा, हर 5 साल में निर्धारित समय में वोट होता था। सरकार में आने के बाद तृणमूल ने क्या किया? आज का पंचायत देख लीजिए, आज का म्यूनिसिपैलिटी देख लीजिए, आज का म्यूनिसिपैलिटी का चेहरा देख लीजिए, आज के काउंसिलरों का चेहरा देख लीजिए। हमारे भी लोग, वामपंथी लोग भी म्यूनिसिपैलिटी चलाते थे और ये लोग भी म्यूनिसिपैलिटी चला रहे हैं। कितना फर्क है ये आपको समझ में। কিন্তু ফসল যখন বিক্রি করছে তখন দাম পাচ্ছে না, ফলে আত্মহত্যা করছে, নাই গড়ায় দড়ি দিচ্ছে, আর নাই তো যে সার ফসলে দেয় পোকা লাগার জন্য বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল দেওয়া দেয় ফসল যাতে ভালো হয়, সেইগুলো খেয়ে মারা যায়। এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা। আচ্ছা ধরুন কত পার্সেন্টেজ ভোট পেয়ে মোদী সাহেব গদিতে বসেছিলেন? কত পার্সেন্টেজ? 37% লোক ভোটের সময় 100 জন ভোটে 37টা ভোট তারা পেয়েছিল 100 জনের ভোট। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष देश के सभी राज्यों के शिक्षकों को सम्मानित करता है। इसी क्रम में बंगाल के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। पहला नाम नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कलीमुल हक तथा दूसरा नाम अलीपुर द्वार की मिसा घोषाल का है। শিক্ষক আজকে রাষ্ট্রপতি দ্বারা মানে সম্মানিত হলেন, এটা সত্যি গর্বের বিষয়। এটা আমাদের অনুপ্রেরণা সবার কাছে, সকল শিক্ষক মণ্ডলীর কাছে, যে তারাও তাদের নিষ্ঠার সঙ্গে তারা শিক্ষকতা করবেন এবং তারাও যাতে আগামী দিনে এই ধরনের প্রোগ্রামে তারা উপস্থিত হতে পারে এবং আমাদের এখানকার সকল মানুষকে একটা নতুন আলোর দিকে দিনে আসতে পারে, এই শুভকামনা রেখে এবং ওনাকে অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই আমরা এটি জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। ম্যাডাম, চলুন স্যার।
किस चीज़ के लिए क्या देख करके आपको ये गीता के लिए ये जो अवार्ड मिलता है ये अभी अभी आपने महामहिम राष्ट्रपति की सरकार जो अभिभाषण सुना उसने कहा कि शिक्षा में उन्नत योगदान के लिए और स्पेशली जो मुझे ये चुना गया है इसमें जो हमारा नेपाली परा हिंदी हाई स्कूल है जब मैंने वो ज्वाइन किया था तो उसकी अवस्था बहुत ही ख़राब थी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पठन पाठन का मान हो या फिर सोसाइटी के अंदर इसका एक रिपोर्टेशन हो, सब तरीके से स्कूल काफ़ी लोअर स्तर पे था। वहाँ से हमने काम करना शुरू किया। सबसे पहले हमने अपने जो सहकर्मी हैं उनको साथ लिया, मैनेजिंग कमेटी और जो सोसाइटी के लोग हैं उनको साथ लेकर के हमने जो हमारा शिक्षा दफ्तर है उसके साथ अप्रोच किया, जो विभिन्न NGOs है उसको सब साथ लिया और सरकार और सोसाइटी को एक साथ लेकर के आज जो हमारा नेपाली परा हिंदी हाई स्कूल है पिछले साल 2019 में पूरे राज्य का प्रथम स्कूल के हिसाब से। किस चीज़ के लिए क्या देख करके आपको ये गीता के लिए ये जो अवार्ड मिलता है ये अभी अभी आपने महामहिम राष्ट्रपति की सरकार जो अभिभाषण सुना उसने कहा कि शिक्षा में उन्नत योगदान के लिए और स्पेशली जो मुझे ये चुना गया है इसमें जो हमारा नेपाली परा हिंदी हाई स्कूल है जब मैंने वो ज्वाइन किया था तो उसकी अवस्था बहुत ही ख़राब थी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पठन पाठन का मान हो या फिर सोसाइटी के अंदर इसका एक रिपोर्टेशन हो, सब तरीके से स्कूल काफ़ी लोअर स्तर पे था। वहाँ से हमने काम करना शुरू किया। सबसे पहले हमने अपने जो सहकर्मी हैं उनको साथ लिया, मैनेजिंग कमेटी और जो सोसाइटी के लोग हैं उनको साथ लेकर के हमने जो हमारा शिक्षा दफ्तर है उसके साथ अप्रोच किया, जो विभिन्न NGOs है उसको सब साथ लिया और सरकार और सोसाइटी को एक साथ लेकर के आज जो हमारा नेपाली परा हिंदी हाई स्कूल है শিক্ষক আজকে রাষ্ট্রপতি দ্বারা সম্মানিত হলেন, এটা সত্যি গর্বের বিষয়। এটা আমাদের অনুপ্রেরণা সবার কাছে, সকল শিক্ষক মণ্ডলীর কাছে, যে তারাও তাদের নিষ্ঠার সঙ্গে তারা শিক্ষকতা করবেন এবং তারাও যাতে আগামী দিনে এই ধরনের প্রোগ্রামে তারা উপস্থিত হতে পারে এবং আমাদের এখানকার সকল মানুষকে একটা নতুন আলোর দিকে দিনে আসতে পারে, এই শুভকামনা রেখে এবং ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা এটি জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज। रानीगंज थाना अंतर्गत बासड़ा ग्राम के लोगों ने अवैध कोयला खनन के प्रतिवाद में बासड़ा कोलियरी के एजेंट तथा मैनेजर का घंटों घेराव किया। रानीगंज थाना अंतर्गत बासड़ा ग्राम के लोगों ने अवैध कोयला खनन के प्रतिवाद में बासड़ा कोलियरी के एजेंट तथा मैनेजर कार्यालय का घंटों घेराव किया। इस दौरान लगभग 50 से 60 पुरुष एवं महिलाओं ने मिलकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए कहा कि इलाके में उनकी जमीन पर अवैध रूप से खदान चल रहे हैं, जिसे लेकर कोलियरी प्रबंधन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। अवैध खदानों में ब्लास्टिंग की वजह से लोगों में एक भय बना रहता है, साथ ही साथ वे लोग कृषि भी नहीं कर पा रहे। इसे लेकर कई बार ग्रामवासियों ने कोलियरी प्रबंधन से शिकायत भी की, परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं होने पर ग्रामवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर ज्योत्सना मंडल, सुचित्रा दत्तो, शांता गोस्वामी, कौशिक पात्रो, कांति गोपाल दत्त, तन्मय पात्रो सहित अन्य स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर कोलियरी के एजेंट AK सालुई का कहना है कि जिन स्थानों पर अवैध खदान चल रहे हैं वह जमीन ग्रामवासियों की है एवं अवैध खदान चलने के दौरान कोलियरी के कोयले की चोरी भी हो रही है, परंतु फिर भी ग्रामवासी कोलियरी प्रबंधन पर दोषारोपण करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामवासियों को अवैध रूप से चला रहे खदान मालिकों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय में कई बार पुलिस को बुलाकर अवैध खदानों में डोजरिंग भी की गई एवं आज भी पुलिस को बुलाया गया। यही देने आया था। জমি নষ্ট করা হলো কেন? এজেন্ট ম্যানেজার জবাব দাও। জনমের খাতা বন্ধ করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। বিলম্বে জনমের খাতা বন্ধ করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। বিলম্বে জনমের খাতা বন্ধ করতে হবে। এত অবৈধ খাদান খুলেছে এখানে যে আমাদের গ্রামবাসীদের বাঁচা মানে দুর্বিষহ হয়ে গেছে। বাইরে থেকে বহিরাগত আজকে স্কুল বন্ধ, কলেজ বন্ধ, সমস্ত কিছু সংস্থান বন্ধ আছে। আজ কোভিড-19 এত বড় একটা রোগাক্রান্ত সারা দেশ ভুগছে, কিন্তু আজ 2 নম্বরী খাদান কীভাবে চলছে? কোনো প্রশাসনের চোখে ধুলোতে কীভাবে চলতে পারে সব? আমরা চাই অবিলম্বে এগুলো বন্ধ হোক। এত বহিরাগত আমাদের গ্রামবাসীরা ঢুকছে যে আজ যদি গ্রামে কোনো রকম এত বাচ্চা এত
মানে মহিলা এতজন যদি করোনায় আক্রান্ত হয় তার দায় কে প্রশাসন নেবে না সিএল নেবে না কে নেবে? আমরা চাই অবিলম্বের কোনো বিধি চাই। আপনার নাম? আমার নাম কৌশিক পাত্র। দাবি দিয়ে নিয়ে এসেছি, কয়লা চোর দিকে ধরতে হবে, অবিলম্বে 2 নম্বরই কয়লা খাদান বন্ধ করতে হবে, চাষযোগ্য জমি আমাদের নিতে হবে। আমাদের তো হচ্ছে না, চাষযোগ্য জমিগুলো আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে কয়লা মাফিয়ারা। তো তাহলে ইসিএল নিয়ে নেক, ইসিএল যদি নিয়ে নেক তারপর ইসিএল কি করবে না করবে আমাদের দেখার দরকার নেই। আচ্ছা, বাসার কোন এরিয়াতে এই ঘটনাগুলো ঘটছে? বাসরা সব জায়গাতে হয়েছে, কোন জায়গাতে হয়নি বলুন তো? সব জায়গাতে হচ্ছে। আমাদের খালি আসা যাওয়া সার হচ্ছে, ইন্দুরে গর্ত মতন খালি ভরে দিচ্ছেন উনি, আবার রাখতে হচ্ছে আবার খুলছেন। তাহলে আমাদের আচ্ছা, আপনাদের বাড়ির মানে দেওয়ালের মধ্যে কোনো ক্র্যাক হচ্ছে? হ্যাঁ, আমাদের নিরাপত্তা ভুগছি, আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। যে কোনো সময় আমরা ধসে যেতে পারি, শীতল পাতাল প্রবেশ হয়ে যাবে। আমাদের হুমকি দিচ্ছে রাত্রেবেলায়, বাইরের লোকরা আসছে, তারপর আমাদের আননোন নম্বরে ফোন করছে, আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। তো আমাদের ম্যানেজমেন্টকে এজেন্টকে আমরা বলে থকে গেলাম, এজেন্ট কিচ্ছু করছেন না, আমাদের ওনার পকেটে ঢুকে যাচ্ছেন, তো উনি কিচ্ছু কোনো স্টেপ নিচ্ছেন না। কি চাইছেন আপনারা আজকে যে প্রদর্শন? আমরা কয়লা চোর দিকে ধরতে হবে, 2 নম্বরই খাদান বন্ধ করতে হবে, আর ইসিএল কে জায়গা নিতে হবে। এইটা আপনারা বাঁশলায় কোন জায়গায় থাকেন? মানে আমরা বাঁশলা গ্রামেই থাকি, আমরা সব গ্রামবাসী বৃন্দ। কি नाम আপনার? शांता गोस्वामी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंग अपर चाकरी प्रार्थी मंच की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर शनिवार को आसनसोल बीएनआर मोड़ स्थित रविंद्र भवन के सामने अपर प्राइमरी की परीक्षा के 7 साल बीत जाने के बावजूद नियुक्ति नहीं होने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मैडम है वो सब मार्क्स दे रहे हैं। तक नहीं हुआ है और इससे हम लोग शामिल हैं और उसी वंचना से हम लोग गुजर रहे हैं, जो कि एनलिस्टेड होने के बाद भी हम लोग का नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इस बेरोजगारी के दिन में हम लोग की जो योग्यता होते हुए भी ऐसे वंचित बैठे हुए हैं, इसके लिए हम लोग के अंदर एक जो है बहुत हताशा पैदा हो रहा है और इस हताशा, इस वंचना से हम लोगों को उभरने के लिए जितना सत्तर हो सके कोर्ट केस मिट जाए और हम लोग की नियुक्ति की एक मीमांसा हो जाए, तो हम लोग को भी चैन आएगा और स्कूल में जो शिक्षक की घाटती है वो भी पूरा होगा। और अगर स्कूल खोलने के बाद बच्चा का जो रेशियो है स्कूल टीचर और बच्चा में जो रेशियो क्लास 8 तक, उस रेशियो भी मेंटेन होगा और बच्चे जो है स्कूल के छात्र की जो वंचना है टीचर सही नहीं मिलने का, वो भी जो है समस्या समाधान। आज आप लोगों ने क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज हम लोग यही वंचना जो है 7 साल से जो हम लोग की नियुक्ति नहीं हो पा रहा, इसको माने सब आम आदमी को इसके बारे में हम लोग सचेतन करने के लिए एक जो है एकजुट हुए हैं और प्लेकार्ड लेकर के हम लोग सचेतन कर रहे हैं। एक ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर सुभाष स्वदेश भावना संस्था की ओर से शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शुक्रवार को रानीगंज के गिरजापाड़ा की रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खालसा सिख संगत गोविंद नगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। नगर निगम के आशुतोष भवन में शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई।
23 नंबर वार्ड पार्षद देवव्रत साई के नेतृत्व में एमएएमसी तृणमूल पार्टी कार्यालय के समक्ष एक कार्यक्रम का आयोजन। पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से 250 पूर्व शिक्षक तथा वर्तमान शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। रानीगंज के रहने वाले 35 वर्षीय युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट रानीगंज थाने में दर्ज कराई गई।